आप सब लोगों को जय मसीह की। Today is 21st Sunday after Pentecost, and this Sunday is also known as Reformation Sunday. The theme of our worship this morning is The Lord Brings Reformation. The Lord wants us to reform our ways because reformation brings transformation and also brings blessings. So let us reform our ways because reformation leads to transformation, which leads to blessings. Let us pray. Father Almighty, we thank you for this beautiful morning. We thank you, O Lord, for your presence with us. प्रभु परमेश्वर तू हमारा प्रभु है, हमारा बचाने वाला है, हमारा नजात दहिंदा है। प्रभु परमेश्वर आज तक तूने खबर ली है और आगे भी खुदावंद तू अपने प्रोटेक्शन में रखेगा। हम सबको खुदावंद तू अपनी राहों पर चला, क्योंकि खुदावंद यू वांट अस टू रिफॉर्म आवर वेज, देयरफॉर यू वांट अस टू रीड दाय वर्ड प्रॉपर्ली। खुदावंद तू चाहता है कि हम तेरे वचन को गहराई से पढ़ें, उसको समझें, एंड योर वर्ड में ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स। और खुदावंद ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो कि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु तेरा कार्य होने पाए और हम तेरी समानता में, तेरे स्वरूप में खुदावंद बढ़ते चले जाएं। और प्रभु परमेश्वर जब हमारा तेरे से ऐसा रिलेशनशिप हो जाएगा कि हम तेरे होंगे और आप हमारे होंगे, तब खुदावंद हम आपसे जो कुछ मांगेंगे आप हमारे बीच में कर देंगे। प्रभु परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ट्रांसफॉर्म अस थ्रू दाय होली ग्रेस एंड यूज अस फॉर योर ग्लोरी and fill us with your blessings. For I ask it all in the name of your Son, our Savior, Jesus Christ. Amen. ये समय होगा कि हम अपना पहला गीत गाएंगे। Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy health and salvation. Come ye who hear, brothers and sisters, draw near. Praise Him in glad praise to the Lord, who o'er all things so wondrously greater, shelters thee under His wings, yea, so gently sustainer. Hast thou not seen all that His people have been, planted in what He praise to the Lord, who doth prosper thy work and defend thee. Surely His goodness and mercy daily attend thee. Wander anew, all the Almighty can do. He who with love doth defend thee. Praise to the Lord, oh, let all that is in me adore Him. All that hath life and breath come now with praises before Him. Let the Amen sung from His people again, gladly pouring me adoring. इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी
ओल्ड टेस्टमेंट की रीडिंग जो कि ली गई है फ्रॉम द बुक ऑफ सेकंड किंग्स चैप्टर 4 वर्स 1 to 7, and Miss Cheryl Dhan will lead us in the reading of the text. 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" "Your servant has nothing there at all," she said, "except a small jar of olive oil." Elisha said, "Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one son." She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "There is not a jar left." Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, "Go, sell the oil and pay your debts. You and your son can live on what is left." This is the word of the Lord. Thanks be to God. भजन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय उसकी 4 से 10 आयत और मिस एंजल आकांक्षा सिंह इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। परमेश्वर का वचन जो लिया गया है भजन संहिता 34 उसकी 4 से 10 आयत। मैंने प्रभु को खोजा और उसने मुझे उत्तर दिया। उसने मेरे सब भय से मुझे मुक्त किया। प्रभु पर दृष्टि करो, तब तुम्हारा मुख प्रकाशमय हो जाएगा और तुम अपने विश्वास के लिए कभी लज्जित न होगे। इस पीड़ित व्यक्ति ने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। प्रभु ने उसके सब संकटों से उसको बचाया। जो लोग प्रभु की भक्ति करते हैं उन्हें प्रभु का दूत चारों ओर से घेरे रहता है। वह उन्हें मुक्त करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह पुरुष जो प्रभु की शरण में आता है। ओ प्रभु के संतों, प्रभु से डरो। जो लोग प्रभु से डरते हैं उन्हें अभाव नहीं होता। युवा सिंह को घटी होती है और उन्हें भूख लगती है, पर जो लोग प्रभु को खोजते हैं उन्हें भली वस्तु का अभाव नहीं होता। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। The Holy Gospel is found written in the Gospel according to St. Luke, chapter 17, beginning at the 11th verse to the 19th verse, and Mr. Arundas will lead us in the reading of the text. इंजील मुकद्दस लूका की इंजील उसका 17वां बाब 11 से 19 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वह 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Let us bow down our heads in prayer. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. The Old Testament reading जो हमारे सामने अभी पढ़ी गई कि इलीशा नबी के पास एक विधवा औरत आई और उस विधवा के पास 2 बेटे थे, और वो जो औरत थी उसका पति जो था वो पादरी था। उसका पति जो था वो मर गया
और जब उसका पति मर गया तो उसने किसी से लोन ले रखा था और वो लोन चुकता नहीं कर पाए, और वहां का जिस रिच आदमी से उसने लोन ले रखा था वो आया, उसने कहा आप लोन नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने दोनों बच्चों को मुझे स्लेव की तरह दे दें। एंड शी वॉज वेरी perturbed, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और वो सीधी एलीशा नबी के पास आई और अपने दुपड़े को एलीशा नबी के सामने रखा। और हम देखते हैं एलीशा नबी ने उस औरत से कहा तेरे पास क्या है? और तब वो औरत कहने लगी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे साथ सिर्फ थोड़ा सा एक बोल के अंदर ऑलिव ऑयल है। हम देखते हैं द प्रॉफिट्स, प्रीस्ट एंड रिफॉर्मर्स, ये सब लोग परमेश्वर के दास और दासियों में गिने जाते थे। और ऐसे ही किसी प्रॉफिट की जो बीवी थी उसके पास अब कुछ नहीं था और एक बहुत बड़ा लोन उसके पास था। और जब वो एलीशा नबी के पास आई तो एलीशा नबी ने उससे कहा तेरे पास क्या है? और उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक जार में एक बोल के अंदर ऑयल है। और उसने कहा जा अपने घर में जितने भी बर्तन तो हो सकता है वो जमा कर ले। जब कभी आपको कहा जाता है कि आप जाएं और कोई चीज जमा कर लें तो सबसे पहले लोग पूछते हैं भाई आप बर्तन किस लिए ले रही हैं, आपके घर में तो कुछ है। इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन एवरीबॉडी नोज कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप किस चीज के लिए बर्तन ले रहे हैं। और एलीशा नबी ने कहा कि तू थोड़े बर्तन मत लेना, ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े डेगची, बड़े से बड़ा वैसल लेना और ज्यादा से ज्यादा वैसल आस पड़ोस में सबसे मांग लेना। जाहिर सी बात है कि जब लोग पूछेंगे तो बड़ा ऑकवर्ड सी सिचुएशन है कि आपके घर में कुछ है तो है ही नहीं और आप इतने बड़े बड़े डेगचे और डेगचियां मांगने में लग रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा और बड़े से बड़ा बर्तन मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मगर प्रभु क्या कहना चाहता है कि जब उस औरत को कहा गया कि जा तू ऐसा कर तो उसने जाके ऐसा किया। हम एक चीज को देखते हैं, एक होप को देखते हैं कि उसको विश्वास था कि जो परमेश्वर के दास ने कहा है, एलीशा नबी ने कहा है, वो हाँ और आमीन है। और हम देखते हैं वो जाती है अपने बच्चों के साथ और जितने भी वो बर्तन कलेक्ट कर सकती है वो उनको ले आती है अपने घर में और फिर दरवाजा बंद करके, कुंडी बंद करके वो उस बोल में से, जिस बोल में वो तेल था उसमें से वो पोर करने लगती है। हम देखते हैं कि जब वो पोर करती है तो वो उस बोल में से तेल गिरता ही चला जाता है, गिरता ही चला जाता है। एक जार भर जाता है, दूसरा भर जाता है, तीसरा बर्तन भर जाता है, ऐसे करके बढ़ता चला जाते हैं और वो उनको रखते चले जाते हैं। दिस इज ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आज की तारीख में भी बहुत महंगा है। 100 ग्राम की बोतल छोटी सी 200 रुपए के करीब आती है। आप लेने जाएं तो बहुत महंगा है। और ऑलिव ऑयल जो है वो कई डेगचियों में, कई बड़े कनस्त्रों में, कई बड़े वेसल्स में भर लिया उन्होंने और फिर वो अपने लड़के से कहती है ला और वेसल ला, तो कहते हैं कोई भी वेसल अब नहीं है, सारे भर गए हैं और तब वो ऑयल बंद हो जाता है। हम देखते हैं खुदावन आदमी के जीवन में उस चीज से काम करता है जो उसके पास है। कई बार लोग यही रोते रहते हैं हमारे पास ये नहीं है। कोई लंबा है तो उसको ये लगता है मैं तो बहुत ही लंबा हूँ, कोई छोटा है उसको लगता है मैं बहुत ही छोटा हूँ, किसी को लगता है मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, कोई कहता है मैं गोरा हूँ, कोई कहता है मैं काला हूँ। हर एक बंदे को खुदावन ने जो बनाया है वो उसकी कीमत को समझने की कोशिश करें। कई बार हम उस चीज के लिए रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। वह परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है तो उस चीज की तरफ देख जो तेरे पास है, क्योंकि जो तेरे पास है मैं उसी से तुझे ब्लेस कर दूंगा और इतना ब्लेस कर दूंगा कि तेरी समझ से बाहर की बात होगी। और तब तो खुदा के हाथ को अपने जीवन में जान लेगा कि मैं परमेश्वर हूं, मैंने जो तुझे दिया है
अगर तू उस टैलेंट को समझ नहीं रहा है, अगर तू उस बात को जो तुझे मिली है छोटी बात समझ रहा है, तो तू मुझे छोटा समझ रहा है, क्योंकि आई हैव मेड यू, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तेरे को, इसका मतलब हमारे अंदर एक रिफॉर्मेशन आना जरूरी है। आज हम रिफॉर्मेशन संडे मना रहे हैं। रिफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम रिफॉर्म करेंगे अपने आप को, तो हम प्रभु के वचन से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और जब हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, तो हम अपने अंदर जो वैल्यू है उनको पहचान पाएंगे। परमेश्वर कह रहा है, जो मैंने तुझे बनाया है, पहले उस चीज को तारीफ कर कि खुदावंद, यू आर मास्टरपीस, तूने मुझे एक मास्टरपीस बनाया है, एंड यू आर अ मैग्निफिसेंट गॉड। तू जो है बहुत ही अचरज भरा परमेश्वर है, जो जिसने मुझे ऐसा सुंदर बनाया है, ऐसा बढ़िया बनाया है, और तूने मेरे अंदर वो सब चीज डाली है जो कि मुझे भर देने के लिए काफी है। और उस विधवा ने ऐसा ही किया जैसा एलीशा ने कहा था, और सारे जो थे जार्स भर दिए। हम देखते हैं यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ एक बयाबान जंगल में लोगों को वचन सुना रहे थे, तो काफी देर हो गई, लेट हो गया, और उसने कहा तुम इनके लिए कुछ खाना लाओ, तुम ही उनको कुछ खिलाओ। और वहां लिखा है 5000 तो आदमी थे, और अराउंड 10,000 औरतें भी होंगी, और 10,000 बच्चे भी होंगे, तो 20 से 25,000 की भीड़ थी। और उसने कहा तुम इनको खिलाओ। तो फिलिप इनके लिए खाना प्रोवाइड करो। और फिलिप ने कहा अगर हम 200 दिनारी की रोटियां भी ला के दें, तो एक एक टुकड़ा भी होगी किसी के पास। तब खुदावंद ने फिर उनसे पूछा तुम्हारे पास क्या है? तब उन्होंने यीशु को कहा हमारे पास 2 मछली और 5 रोटी है। तो उसने कहा वो 2 मछली और 5 रोटी मेरे पास ले आओ, और जितनी भी भीड़ है उसको 50-50 और 100-100 के ग्रुप्स में उनको बिठाओ, और बीच में उन ग्रुप्स की थोड़ी जगह रहे ताकि तुम्हारे आने जाने का रास्ता हो। और तब उन्होंने उन रोटियों को तोड़ा, यीशु ने उन रोटी को तोड़ा और उस मछली को ब्लेस किया, और 5,000 मैन, अमाउंट 10,000 वुमन, और मे बी 10 to 15,000 चिल्ड्रन, वो सब जो थे उस रोटी और मछली से खाकर तृप्त हो गए। तो हम देखते हैं परमेश्वर के माइंडसेट को देखें। उसने कहा तुम्हारे पास क्या है, ये मत देखो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। What you have, see to that। हम अपने जीवनों में अपनी क्वालिटीज को देखने की कोशिश करें कि खुदावंद मेरे पास क्या है, और तब जब हम अपने ट्रॉफीज को, अपनी टैलेंट्स को, अपने आप को खुदावंद के पास लाएंगे, तो खुदावंद हमारे उस छोटे से चीज को जो हमारे पास हम सोचते हैं कि है, उसको इतना बढ़ाएगा कि वहां 25,000 लोगों ने खा लिया, और 12 टोकरियां जो बची हुई थी, यानी जो कि रोटियां यूज नहीं हो पाई थी, वो उन्होंने एकत्रित की ताकि आगे इस्तेमाल हो सके। तो हम परमेश्वर के हाथ को देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। लेट अस लुक विद इन आवरसेल्व्स कि खुदा तूने हमें क्या क्या दिया है। हम उस चीज के लिए रोते रहते हैं जो तूने हमें नहीं दी। किसी के पास बहुत पैसा है, उसके पास खुशी नहीं है। किसी के पास पैसा नहीं है, उसका ये रोना है कि मेरे पास पैसा नहीं है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। मगर परमेश्वर मुझे और आपको कहता है जो तेरे पास है उसको लेके तू परमेश्वर के पास आ जा, और परमेश्वर तुझे बहुतायत की आशीष देगा। अगर हम भजन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय देखें और उसकी 4 से 10 आयत जो हमारे बीच में पढ़ी गई, अगर हम उसको देखें तो वहां क्या लिखा है? वहां यूं लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। कई बार हम भय में होते हैं। वो औरत जो थी बहुत ही भय में थी कि मेरे पास इतना बड़ा लोन है, पति की डेथ हो चुकी है और इन बच्चों को भी वो स्लेव्स की तरह खरीदने आ गया है, तो मैं क्या करूं? और जो लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डगमगियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है।
हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। Now God is saying very clearly, आज यहोवा के चुने हुए पवित्र लोगों, अगर आप अपने आप को राइचियस बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, तो आपको किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। वो कहता है 10वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी बलि वस्तु की घटी ना होगी। यानी जो परमेश्वर के खोजी है, इसका मतलब हमको सीकिंग पीपल बनना है। एक तो है बाइबल में लिखा, आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, और फिर सीक एंड यू शैल फाइंड, and knock at the door shall be opened unto you. So there are three realms in the man's life: asking, seeking and knocking. Asking, seeking and knocking. तो अगर तू नॉक करेगा तो द्वार तेरे लिए खोला जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर मंदिर के आकार को देखें, जो ओल्ड टेस्टमेंट का मंदिर था, जो कि सुलेमान का मंदिर था, वो कैसे बना था? आउटसाइड वो ओपन एरिया था, उसके अंदर सैक्रिफाइस होती थी, मांगते थे लोग अपने गुनाहों की माफी वगैरह, और उसके बाद इनर जो था सीकिंग लैंड था, जिसके अंदर वो बैठ के परमेश्वर के वचन को पढ़ा करते थे, शांति होती थी, और उसके अंदर वाला पार्ट उसमें एक पर्दा था, एंड दैट इज द नॉकिंग डोर। और परमेश्वर ने अपनी सैक्रिफाइस के द्वारा वो पर्दा हटा दिया। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, हम अपनी जरूरतों को परमेश्वर के आगे रख दें और वह जरूर से कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। लेट अस नॉट बी हतोत्साहित, हम हतोत्साहित और विचलित ना हो, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, और परमेश्वर हमारी दुआओं को ना सिर्फ सुनेगा, वो हमें हमारे सारे डर से, हमारे फियर से निकालेगा, और वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। अगर हम 114 साम को पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? जब इजराइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने में अन्य भाषा वालों के बीच में से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इजराइल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा और यरदन उल्टी बही। यानी मतलब समुद्र देख के भागा और यरदन उल्टी बही का क्या मतलब है? हम समझने की कोशिश करें। जब मूसा अपने लोगों को इजिप्ट से निकाल के लेके आया, तो परमेश्वर उनके साथ साथ था, और एक समय ऐसा आ गया जहां पर पाई हाइराइट पे वो लोग एक जगह पे फंस गए, ऐसी जगह पे जहां पर एक तरफ सेना थी, फैरो उसके पीछे कर रहा था, और सामने लाल समुद्र था, और दोनों तरफ पहाड़ थे। वो फंस चुके थे। दे वर इन अ प्लेस, वो एक फनल वाली जगह पे थे जहां पर वो फंस चुके थे और उनके कोई रास्ता नहीं था। मगर परमेश्वर ने मूसा से कहा तो अपनी लाठी पानी की तरफ बढ़ा, और लाठी पानी के बराबर बढ़ते ही पानी 2 भाग हो गया। तो इस चीज को वो बताना चाह रहा है कि आए समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टा, तू देखकर भागा, तू फटने लगा, तू भाग गया पीछे। और आए यरदन, और यरदन का जिक्र तब है जब यहोशू जो था वो अपने लोगों को कनान देश के पास ले गया। तो उधर कनान का देश था, बीच में यरदन बहरी थी, और वो समय जिस समय वो क्रॉस करने पे आए, उस समय यरदन अपने फ्लड पे थी, यानी फ्लडेड थी, और बहुत ज्यादा चौड़ी थी, और उसमें से निकल के होकर गुजरना बहुत मुश्किल था। और खुदावंद ने यहोशू को ऑर्डर दिया कि तू पादरी गणों को कहना कि वो यहोवा के अहद का संदूक लेकर पानी में उतर जाए। अब जैसे ही उन्होंने, जो पादरी गण थे, यहोवा का अहद का संदूक लेकर पानी में उतरने लगे, तो पानी जो था वो दूर कहीं रुक के खड़ा हो गया। अब रिवर में पानी ऐसे बह रहा है, तो जब वो ऊपर का पानी ऊपर ही खड़ा हो गया काफी दूर पे उनसे, तो नीचे आने वाला पानी तो बह गया, तो पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया? सूख गया। और सारी की सारी जो इजराइल की लोग थे, अबाउट 2 मिलियन पीपल, वो सारे के सारे रिवर में से उधर क्रॉस हो गए। तो वो इस चीज को बता रहा है, हे समुद्र तुझे क्या हुआ कि तू भागा, और यरदन नदी आए तुझे क्या हुआ यरदन नदी की तू उल्टी बही। ऐसे कैसे हो गया कि तू
बहना बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के नाम के आगे सब चीजें रुक जाती हैं और परमेश्वर की बात को सब मानेंगे। यानी अगर आपके ऊपर कोई भी नीड है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप परमेश्वर से मांगे, क्योंकि देने वाला दाता परमेश्वर है और कोई है ही नहीं। तो बीमारी हो रही है, कोविड हो रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको दुआ करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा दुआ करने की जरूरत है। क्या है, खुदावन तू रहम कर रहे हैं। और हमारी जॉब्स खत्म हो रहे हैं, हमारे पास तनख्वाहें नहीं है, हमारे पास बहुत सी टेंशन्स हैं, तो ऐसे समय में घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से घुटनों पे होकर मांगने की जरूरत है। आए खुदावन तू मदद भेज, क्योंकि खुदावन की बात सब कोई सुनता है। जीवित चीजें और निर्जीव चीजें सब सुनती हैं परमेश्वर की आवाज को। यीशु बोट में थे और वहां बहुत तूफान आ गया और यीशु ने आंधी और पानी को डांटा और थम गया। परमेश्वर कहता है हमारे जीवनों में भी कई बार आंधी और पानी आ जाते हैं, मगर परमेश्वर कहता है चिंता नहीं करो। परमेश्वर मुझे और आपको भरोसा रखना सिखाता है और वो कहता है कदम उठाने लगो। यहोशू को कहा गया कि तू पादरी जनों को कहे कि वो अहद का संदूक लेके चल दें, और जैसे ही उन्होंने नदी में यानी यरदन नदी में पैर रखे, वैसे वैसे पानी पीछे रुक गया। यानी हम देखते हैं उनके कपड़े तक पूरे भीग नहीं पाए, पैर ही गीले हुए, अभी वो पानी में पैर रखते जा रहे थे और पानी पीछे रुक गया। आए यरदन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही, यानी मतलब ये कैसे हो गया? दिस इज द लॉर्ड्स डूइंग। यीशु के पास भी 10 कोढ़ी उससे मिले और उसने उनको कहा जाओ अपने आप को पादरियों को जाके दिखाओ, पुरोहितों को जाके दिखाओ। अब जो कोढ़ी लोग थे, क्योंकि कोढ़ वाज अ कम्युनिकेबल डिजीज, अब कम्युनिकेबल डिजीज में कोढ़ियों को अलग कर दिया जाता था, एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाता था। कोढ़ी सिटी में घुस नहीं सकते थे, और ऐसे केस में अगर कोढ़ी को कह दिया जाए जाओ पादरी को जाओ, तो पादरी तो टेंपल के अंदर है और वो तो बहुत बड़ी भी जगह है, वहां तक जाते जाते तो लोग पथराव करके कोढ़ियों को मार देंगे। मगर वो चल दिए, while they were on their way, अभी उनके हाथ पैर चंगे नहीं हुए थे, अभी वो वैसे के वैसे थे जैसा वो मिले थे यीशु से। और यीशु ने कहा जाओ अपने आप को पादरियों को दिखाओ, पुरोहितों को दिखाओ, और वो चल पड़े। और जब वो जा रहे थे, अब हमें ये नहीं पता कितनी देर में कितनी दूर जाना था, क्योंकि पैदल जा रहे थे तो डेफिनेटली जो कई किलोमीटर भी, अगर 4 किलोमीटर भी जाना था तो काफी टाइम लग गया होगा। तो जब वो जा रहे थे तो while they were on the way, उन्होंने देखा थोड़े कुछ कदम बाद तो उन्होंने देखा हम वैसे के वैसे हैं, मगर काफी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा अरे हमारी स्किन ठीक होती जा रही है, हमारे घर से उंगलियां बनने लगी हैं, हमारे अंदर पूरा चेंज आता जा रहा है, वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। परमेश्वर कह रहा है उसके बात पर भरोसा रखें, और भरोसा रखने के बाद उस कदम को चल पड़े, यानी मतलब जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको फॉलो करें। जब आप उस कदम पर, उस पथ पर कदम बढ़ाने लगेंगे, आप खुद ब खुद चंगे हो जाएंगे। तो परमेश्वर से एक डायरेक्शन मांगे, खुदावंद मैं क्या करूं, खुदावंद मुझे क्या करना चाहिए। और जब आप परमेश्वर से डायरेक्शन मांगेंगे और जब आपको परमेश्वर कुछ डायरेक्शन दे तो उस काम को जरूर से करें। हम देख लें कि परमेश्वर की आत्मा जो हमें बोलती है वो कभी भी गलत नहीं होगा, इसलिए परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करें। कई बार हम अपनी आवाज को ही सुन लेते हैं और कहते हैं परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर की आवाज और अपनी आवाज में फर्क होता है, यानी मतलब परमेश्वर की आवाज हमारी आवाज से विभिन्न होती है, फर्क होती है, और वो हमारे माइंडसेट से भी फर्क होती है। जो हम सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता। थोड़ी लोग भी कह सकते थे पहले हम ठीक हो जाएं उसके बाद जाएंगे, वहां परमेश्वर ने उनसे कहा जाओ अपने आप को पुरोहितों को दिखाओ, और वो चल दिए। यानी मतलब कि बाइबल में लिखा है तुम अपने पुरोहितों की सुना कर, और जो पुरोहित की सुनेगा परमेश्वर उस पर बरकत देगा। यानी परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम परमेश्वर की वचन को सुने, हम परमेश्वर की अगुवाई में बढ़ें, और तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल बाहर है हमारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और जब तब हम खुदा से कुछ भी जो मांगेंगे
प्रभु वो हमें दे देगा। तो हम प्रभु की तरफ बढ़ें, प्रभु की तरफ अपने मन को लगाएं और प्रभु में बढ़ते चले जाएं। हम देखते हैं खुदावन जो है वो अपने लोगों को बताना चाहता है कि अगर आप विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे तो खुदावन आपके लिए बड़े बड़े काम कर देगा। एंड ही विल स्पीक टू यू, ही विल गाइड यू एंड ही विल प्रोटेक्ट यू। तो आइए खुदा के पास आए और उसके वचन के द्वारा अपने आप को रिफॉर्म कर लें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें। और जब हम परिवर्तित हो जाएंगे तब हम खुदा से जो कुछ मांगेंगे प्रभु हमारे जीवन में कर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं तेरे अच्छे सुंदर और मीठे वचन के लिए जो हमें विश्वास करना सिखाता है। हम तेरे विश्वास में बढ़ते जाएं, तेरे नाम और तेरे जलाल के लिए काम करें और तेरी होली स्पिरिट हमें गाइड करे ताकि हमारा फल तेरे में होकर बना रहे और प्रभु हम तेरी अगुवाई में बरकत पाएं। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। 21 जून 2020 को हमारी पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें यह डिसाइड किया गया कि आप अपने घर पे जब चंदे का गाना गाया जाता है तो आप अपने ऑफरिंग्स को कलेक्ट कर लें और उन ऑफरिंग्स को आप चर्च के अकाउंट पर ट्रांसफर कर दें, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें। अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करना नहीं जानते हैं तो आप जो है क्रॉस चेक चर्च पे मिस्टर सलीम को दे सकते हैं और आप अपने जो भी आप ट्रांसफर्स करते हैं और चेक देते हैं उनके पीछे चर्च के अकाउंट की डिटेल्स जरूर डालें। डोंट फॉरगेट टू पुट द अकाउंट डिटेल्स ऑफ द चर्च बिहाइंड द चेक्स। हम आजकल हर एक वेडनेसडे हमारी एक ऑनलाइन जूम मीटिंग होती है जिसमें हम परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं। आजकल हम हिब्रूज की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। पिछली बार आप में से जितनों ने ज्वाइन नहीं की, ये यू हैव मिस समथिंग। हम गुजारिश करेंगे सबसे, मैं गुजारिश करूंगा पूरे चर्च से कि आप लोग सब इस जूम मीटिंग में जरूर से ज्वाइन करें क्योंकि इट इज वेरी गुड फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर फ्यूचर। हम सब जो है परमेश्वर के वचन को जब पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तो हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक बरकत आएगी, तब हमारे बंद काम चलने लगेंगे, परमेश्वर का हाथ और बरकत हमारे साथ होगी। खुदावंद यीशु ने कहा कि तुम लोग मेरे को जानो। जब लोग उससे पूछे कि हम इटर्नल लाइफ पाने के लिए क्या करें तो खुदावंद ने कहा तुम उसे जानो जिसे उसने भेजा है। तो आजकल हम हिब्रूज की किताब पढ़ रहे हैं और हिब्रूज की किताब एक बहुत ही डीप किताब है और आप लोग प्लीज खुद भी उस जूम मीटिंग में जो कि 7 बजे एवरी वेडनेसडे होती है उसमें आप लोग ज्वाइन करें। लिंक हम आपको भेज देते हैं तो एक दूसरे के साथ लिंक शेयर करें और प्लीज खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। हम सब एक दूसरे को से शेयर करें और हमारे जो जूम मीटिंग का जो डिजायर है वो सिर्फ ये है कि हम परमेश्वर के वचन को जानें और वचन में खूब आगे बढ़ें और उसकी बरकतें हमारे साथ और तब परमेश्वर की जो आज्ञा है उसके मुताबिक आपके जीवन में बरकत आएगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है अपने आप को जानो, तब जब तुम देखोगे कि खुदावंद ने आपको क्या क्या बरकतें दी हैं तो आप बढ़ते चले जाएंगे। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू जॉइन द जूम मीटिंग एवरी वेडनेसडे एट 7 o'clock इन द इवनिंग। ये समय होगा कि हम अपना हदिये का गीत गाएंगे। Yeah, man,
मिस्टर रॉयडल साइमन से कि वो चंदे के लिए और उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की डिप्रेशन में हैं या उन लोगों के लिए जो कि बीमार हैं और चंगाई चाहते हैं, उन सब के लिए दुआ करें। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, Thou hast granted us the gift to be Thy children, and through Thy holy scriptures we learn to walk in Thy light, live by Thy word, and day by day strengthen our faith in Thee. For we know that all things come from Thee, and through faith we give unto Thee. We beseech Thee to bless this offering, that it multiply and benefit in the spread of Thy holy word and Thy heavenly kingdom. As we bow at Thy footstool, O Lord, we beseech Thee to place Thy healing hand upon the children, upon those who are sick, upon those who are feeling the burden of this pandemic, upon those who are in need of employment, and upon those, Lord, who are depressed. Let them have the strength and courage to look up to Thee, call upon Thy name, and beseech Thee to carry them through the sands of time. Lord, we beseech Thee to be with us through these stressful days, and keep us in Thy protective care. Let Thy Spirit guide us and touch us in everything we do, through Thy beloved Son, our Savior, Jesus Christ. Amen. सिफारिशी दुआएं। आइए हम तमाम बनी आदम के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। हम खुदावंद से दुआ करें कि सारे जहां में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान कसरत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम उन सब के लिए दुआ करें जो इस गांव या शहर में सुकूनत करते हैं, और इन तमाम बातों के रफा होने के लिए भी जो एक दूसरे में जुदाई और तफरीका पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में हकीकत, यगानगत और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए दुआ करें जो ज़राअत, सनत और तिजारत के साथ काम में मशगूल हैं, और दीगर तमाम तक खादिमों के लिए भी जो हमारी ज़रूरत मुहैया करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम तमाम उस्तादों, तालिबों, इल्मों, साइंसदानों, हुनरमंदों, मुसन्निफों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर पाजीर हैं, दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, जो गरीब और भूखे हैं, जो मोहताज या पसमानदा हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं, दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्होंने इस मुल्क या दूसरे ममालिक में किसी किस्म का इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे सदर वजीर आजम, इस सूबे के गवर्नर और वजीर आला, और उन सब के लिए भी जो हम इंसानों पर हुकूमत चलाते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम तमाम मसलियों के मुद्दत होने और दुनिया में मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम अपने मॉडरेटर और अपने बिशप, कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए दुआ करें कि वह अपनी खिदमत वफादारी से बचा लाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अपनी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारे इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial,
but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. हम हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की कृपा को चलाकर हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ, खासतौर से इस छोटे से झुंड के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause His face to shine upon you, be gracious to you, give you His grace to follow Him. Amen. 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 Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ. काश के यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूहे इलाही दुआ और फिर मुझको जिला यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। आप सबको जय मसीह की।